لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ معزز محترم سامعین حاضرین کرام، اللہ والے اللہ کے ولی جب دنیا سے جاتے ہیں اللہ پاک ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا والے ان کو بھلاتے نہیں، ان کی یادیں تازہ ہوتی رہتی ہیں، وہ خدا کے ہو جاتے ہیں، خدا ان کا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر ساری خدائی ان کی ہو جاتی ہے، پھر زمین و آسمان میں کوئی شے اللہ کے ولی کے حکم سے سر نہیں پھیرتی، حتیٰ کہ جنگلی جانور بھی اللہ کے ولیوں کے پاؤں چاٹتے ہیں۔ حضرت بابا سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، میں ایران کے ایک صحرا میں تھا، سامنے سے مجھے کوئی شخص نظر آیا جو شیر کے اوپر سوار ہو کے آ رہا ہے۔ میرے وہ قریب پہنچا، میں شیر کو دیکھ کر کے کچھ تھوڑا سا گھبرایا، میرے چہرے سے پریشانی ہوئی، اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا کہ ڈرنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیچ، تو اللہ کی راہ سے اللہ کے حکم سے منہ نہ موڑ کہ دنیا کی کوئی طاقت تیرے حکم سے منہ نہیں موڑے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت بابا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایران کے کسی صحرا سے گزر رہے تھے، کیونکہ بابا سعدی بھی ایرانی ہیں، شیرازی ہیں، شیراز کے رہنے والے۔ فرماتے میں صحرا میں گزر رہا تھا تو سامنے سے کوئی شخص آیا، وہ کسی جانور پر سوار تھا، ذرا قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی گھوڑے پر یا خچر پر یا گدھے پر یا اونٹ پر سوار نہیں ہے، وہ تو شیر کے اوپر سوار ہو کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ شیر کو اس نے کوئی رسا نکیل نہیں ڈالی ہوئی، کوئی سنگل نہیں ڈالا ہوا، جدھر اشارہ کرتا شیر ادھر چل پڑتا۔ سبحان اللہ۔ تو بابا سعدی فرماتے ہیں میں ذرا شیر کو دیکھ کر گھبرا گیا، ڈر گیا۔ اس شخص نے مجھے کہا، اے سعدی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیچ، تو اللہ کے حکم سے منہ نہ موڑ، رب کا ہر حکم مان، اللہ کا محبوب بندہ بن جا، پھر دنیا کی کوئی شے بھی تیرے حکم سے منہ نہیں موڑے گی۔ تو یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، تو پھر ان کا حکم ہر چیز پہ چلتا ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے عظیم ولی ہوئے، بادشاہ تھے، تاج و تخت کے مالک تھے۔ ایک دن اپنے شاہی محل میں لیٹے ہوئے تو چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ بات میں تو بڑے چوٹی کے ولی بنے نا، ولی بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب بادشاہ تھے
ताज और तख्त था, सेज पर लेटते, बड़ा शाही महल बना हुआ, उसमें लेटे तो छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। सोचने लग गए, बाहर पहरेदार भी हैं, पुलिस वाले आगे पीछे, ये शाही महल की छत पर कौन चढ़ गया? तो लेटे लेटे आवाज़ नहीं, कोई कौन है छत के ऊपर? आवाज़ आई कि मेरा ऊँट गुम हो गया है, मैं उसको तलाश कर रहा हूँ, ऊँट को ढूंढ रहा हूँ। तो सुल्तान इब्राहिम नदम ने कहा, अल्लाह के बंदे, ऊँट गुम हो गया है तो जंगल में तलाश कर, शाही महल और उसकी भी छत पर ऊँट कहाँ तुझे मिले? उसने आवाज़ दी, अगर शाही महल की छत पर ऊँट नहीं मिल सकता तो शाही महल के अंदर फूलों की सेज पर लेटने वाले को खुदा भी नहीं मिल सकता। वो तो फरिश्ता था अल्लाह की तरफ से उसने ऊपर। अब इब्राहिम बिन अदम के दिल में ये बात उतर गई कि यूं मज़े से फूलों पर लेटे हुए बादशाही में और जनाब खाने पीने में खुदा नहीं मिलता। वो उठे, ठोकर मारी ताज व तख्त को, रात की तारीकी में निकल गए जंगलों की तरफ। अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी, अल्लाह की वली बन गए, रब ने विलायत अता फरमा दी। अब जंगलों के जानवर भी उनका हुक्म मानते, फिजा के परिंदे भी उनका हुक्म मानते, समुद्रों की मखलूक मछलियां भी उनका हुक्म मानती। तो अब जब वो चले गए तो उनका जो पीछे बड़ा वजीर था उसको लोगों ने बादशाह बना लिया। तो एक दिन वो वजीर कहीं गुजर रहा है, समुंदर के किनारे किनारे सफ़र कर रहा है, देखा तो समुंदर के किनारे पर एक शख्स बैठा है, ऐसे ही नीचे ज़मीन पर बैठा है, सख्त धूप पड़ रही है, पसीना पसीना हुआ पड़ा है और सुई से अपनी गुदड़ी को सी रहा है, अपने किसी कपड़े की सिलाई कर रहा है बैठा हुआ। तो वज़ीर जो है वो घोड़े पर सवार और उसके साथ घुड़सवार दस्ता, उसकी पुलिस भी, उस वक़्त गाड़ियाँ नहीं होती थी तो ये घोड़ों पर सवार होके इधर उधर बादशाह सफ़र करते। उसने दूर से देखा तो उसको शुबा हुआ, ये तो हमारा पुराना बादशाह लगता है जो ताज और तख्त को छोड़ के जंगल में निकल गया था, उसके बाद कई साल हमें नज़र नहीं आया, लगता तो वो है सुल्तान इब्राहिम बिन अदम। तो वो वज़ीर जो अब बादशाह था वो पास करीब गया, पहचान लिया कि ये तो वही हमारा बादशाह सुल्तान इब्राहिम बिन अदम है। तो वज़ीर ने अपने वो इक़्तिदार के नशे में मगरूर हो के कहा, ऐ इब्राहिम बिन अदम, ऐ सुल्तान इब्राहिम बिन अदम, अल्लाह ने तुझे ताज दिया था, तख्त दिया था, हुकूमत दी थी, लाखों लोग तेरे हुक्म पर चलते थे, तूने नाशुक्री की है, उसको छोड़ के यूं जंगल में ठोकरें खा रहा है और आज ये हाल है तेरा कि आप कपड़ा तेरा फटा हुआ है तो उसको खुद अपने हाथ से सिलाई कर रहा है। एक वो वक्त था कि जब तेरे आर्डर पर लाखों लोग सर झुकाते थे। वज़ीर ने अपने इक़्तिदार के नशे में ये बात कही। सुल्तान इब्राहिम बिन अदम अब रब के वली बन चुके थे, अल्लाह के वली का मकाम और मर्तबा। तो सुल्तान इब्राहिम बिन अदम ने ये किया, अपनी वो जो सुई हाथ में पकड़ी हुई थी ना, सिलाई कर रहे थे, उसको समुंदर में फेंक दिया। फेंक के फिर मछलियों को हुक्म दिया तो मेरी वो सुई तलाश करके समुंदर से ला के मुझे दो। वो जो वज़ीर खड़ा है वो कहने लगा, देखो इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, भला मछलियाँ भी सुनती हैं, वो भी आप सुई तलाश करके लाएंगे, इसने सुई फेंक दी, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। मगर वज़ीर हक्का बक्का रह गया। मौलाना रूम लिखते हैं, 100,000 माहिए लिल्लाहिए सोज़ाने ज़र हर लबे हर माहिए। वज़ीर हक्का बक्का रह गया। लाखों मछलियाँ अपने अपने मुंह में सोने की सुइयां लेकर किनारे की तरफ बढ़ रही हैं। हर मछली के मुंह में सोने की सुई पकड़ी।
फकीर देखता रह गया, हक्का पक्का रह गया। सुल्तान इब्राहिम बिन अदम ने उसकी हैरानगी में और इजाफा कर दिया। जब हुक्म दिया मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो मैं ठोकर मार के आया हूँ, मेरे सोने के खजाने थे, मैं उनको लात मार के आया हूँ, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो ही मेरी पुरानी सुई वो ला के दो। हत्ता कि एक मछली अपने मुंह में वही सुई ला के मुंह बाहर निकाला किनारे के करीब, तो सुल्तान इब्राहिम बिन अदम ने वो सुई ले ली और अब वज़ीर की तरफ मुंह करके कहा, देख तू कहता है मैं बड़ा ताज था, तख्त था, ये था, वो था, लश्कर था। उस वक़्त सिर्फ कुछ इंसान मेरा हुक्म मानते थे, वो भी लालच में आके उनको तनख्वाह देता था। आज अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है कि समुंदर की मछलियों पर भी मेरा हुक्म चलता है, हवा में उड़ने वाले परिंदों पर भी मेरा हुक्म चलता है, जंगल के दरिंदों पर भी मेरा हुक्म चलता है। रू बदू गुफ्ता व गुफ्ता ए वज़ीर, मुल्क हक बे या चुनी मुल्क अकीर। अब बता है वज़ीर, ये खुदाई सल्तनत बेहतर है या वो मामूली सी चंद अफराद पर हुकूमत जो है वो बेहतर है? अल्लाह वालों को अल्लाह ये अज़मत और ये शान अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी महफ़िल चलेगी, नात ख़वानी वगैरह चल रही है, बार बार ज़रा स्पीकर का